All right, so we're going to start. Assalamu alaikum and a very warm welcome to everyone. My name is Afra Arshad and I am so excited to announce that we are on 7th episode now and welcome all of you to Opening Mind series. This series is basically focusing on supporting adolescents and young adults, and we believe in addressing these issues, and we take these issues seriously, and that's the reason why we have brought about 25 to 30 very powerful speakers on board with us. We will be talking about real issues in these series. All right. So before I give the mic to our speaker, I would like all of you to meet the founder of Teen Therapy Wellness, which is me. My name is Afra Arshad, and I am the visionary founder behind Teen Therapy Wellness. I have established this in about 2019, and that's bring about 7 or 8 years of experience specializing in trauma-informed therapy, emotional regulation, and behavior-focused interventions. I've also been delivering impactful workshops for about 2.5 years now, and I also focus on cooperative settings for about 2 years. I would also like to give special thanks to our sponsors, including Amna Insari, We Protect You, and Wellbeing Hub. And these sponsors are basically focusing on self-care, support, empowerment, and mindfulness. I don't think that this event would have been possible without these sponsors, so I'm highly thankful to each one of them. All right, now moving on to introducing you all to today's inspiring voice, which is Fizan Nisar. She's a psychologist with a clinical psychology background, and she is someone who's deeply passionate about mental health. And today she will be talking about the art of saying no, boundaries in these relationships. I want to thank each of the participants as well who have joined us today, and this is going to be a very insightful topic, so I hope that you will learn a lot in today's webinar as well. We are incredibly honored to have you, Fiza, with us. Over to you now. Fiza, you can share your screen now, and then we're going to start. हेलो एवरीवन। Hello. इसकी आवाज नहीं आ रही। We can hear you, Fiza. मिस क्या नाम है आपका? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आई डोंट नो, मुझे नहीं आ रही किसी की भी आवाज। फिजा, आप अपना स्क्रीन शेयर मुझे क्यों करके नहीं you आ can रही start. आवाज? लेट मी चेक। ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ। All right, मुझे perfect. आवाज नहीं आ रही किसी की भी। चले देखते हैं, स्टार्ट तो करें। I don't know what's happening. You can't use your camera. Sharing your screen. स्क्रीन शो हो रही है मेरी आपको?
Yes. ठीक है, आप मुझे बताइए अगर मेरी स्लाइड शो हो रही है तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, मैं फिर स्टार्ट करती हूँ। मेरी वीडियो नहीं शो रही। You can't use your camera while sharing your screen. Okay, let's start. Okay, hello everyone. So, this is me, Faiza Nisar, and I am a psychology graduate from Muhammad Ali Jinnah University. और okay. और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है द आर्ट ऑफ सेइंग नो। पहले आप मुझे क्लियर बता दें मैं ऑडिबल हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे कोई भी ऑडिबल नहीं है। No, I'm not audible. Yeah, okay. We can Let's hear start. you loud and clear. Okay. ठीक है, I'm audible. Okay. Okay. चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशंस को, टाइम जा रहा है। Okay. So our topic is about the art of saying no, means boundaries in our desi relationship. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि बाउंड्रीज क्या होती हैं। ठीक है, बेसिकली बाउंड्री एक लिमिट होती है, या आप कह दें कि आपकी प्रॉपर्टी लाइन है जो आपको ये बताती है कि किस चीज के आप रिस्पॉन्सिबल हैं और किस चीज के आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। ठीक है, बाउंड्री एक लिमिट है, एक लाइन है जो सेपरेट करती है हमें एक दूसरे के साथ। ठीक है, जैसे कि राइट नाउ अगर आप अपने घर में बैठे हैं तो जो आपके घर है जिसकी वॉल्स हैं वो आपके लिए एक बाउंड्री है। इनसाइड द हाउस जो भी हो रहा है यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, बट आउटसाइड द हाउस जो भी हो रहा है आप उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये बाउंड्री लाइन है, एक लाइन जो हम क्रिएट करते हैं कि कहाँ किस चीजों की हम रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि बाउंड्री एक हेल्दी लिमिट है जो प्रोटेक्ट करती है हमारी वेलबींग को बाय डिफाइनिंग व्हाट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, लाइक आवर थॉट, आवर एक्शन, आवर फीलिंग्स। इन चीजों के हम रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड व्हाट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, अदर पीपल थॉट, देयर फीलिंग, देयर एक्शन। ठीक है, दिस इज सिंपल बाउंड्री। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। ओके, Okay, basically there are 6 types of boundary. Number 1 is physical boundary. Okay, physical boundary is related to your personal space and your body. Like, for example, not wanting to be touched or need privacy. ठीक है, फिजिकल बाउंड्री आपसे रिलेटेड होती है कि आप किस चीज में कंफर्ट है और किस चीज में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है वो कंफर्ट नहीं होता, लाइक हम जब गर्ल्स आपस में मिलती हैं तो हम एक दूसरे के साथ हग करके मिलती हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं। लेकिन देयर आर सम पीपल जो इस चीज में कंफर्टेबल नहीं होते, दे नीड फिजिकल बाउंड्रीज। तो वो क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ हग वो आपसे हैंडशेक कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज फिजिकल बाउंड्री। ठीक है, Okay. Second boundary is emotional boundary. अच्छा. Okay. Your second boundary is emotional boundary. Emotional boundary separate करती है हमारी फीलिंग को दूसरे की फीलिंग के साथ। ठीक है, कि लाइक इमोशनल बाउंड्री ये बताती है कि हमारी फीलिंग और हमारे मूड के हम रिस्पॉन्सिबल हैं, दूसरे की फीलिंग और दूसरे के मूड के वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी फ्रेंड की कल बर्थडे है, ठीक है, और आपका कल एग्जाम भी है। ठीक है, अब आपकी फ्रेंड्स आपको बर्थडे पे भी बुला रही है और आपको एग्जाम भी देना है, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी फ्रेंड को मना कर देंगे ना। आप कहेंगे नहीं मेरा एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इससे क्या होगा, वो हर्ट होगी, उसे बुरा लगेगा। ठीक है, ये सब चीजें होंगी। तो ये सब क्या है, ये इमोशंस होंगे उनके। लेकिन इस चीज के आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आपकी फ्रेंड हर्ट हो रही है इस बात से
कि आप कल उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर पा रहे बिकॉज आपका एग्जाम है, तो इस चीज की आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है. Wait. Okay, I'm audible. बाबर की आवाज की. Okay. Third is mental boundary. Okay. Mental boundary is related to our thought, our values, and our opinion. We all know that कि हम सबका different perspective होता है चीजों को देखने का, ठीक है? तो हम एक दूसरे की जो थॉट, जो ओपिनियन, जो पर्सपेक्टिव, हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने साइकोलॉजी चूज की, तो देयर आर सम पीपल जो मुझे इस चीज पे अक्सर कमेंट्स करते हैं कि नहीं साइकोलॉजी का तो स्कोप ही नहीं है, तुम साइकोलॉजी में क्यों गई, लाइक इस तरह के कमेंट्स आते हैं. लाइक उनके ओपिनियन में साइकोलॉजी का कोई फ्यूचर नहीं है. तो आप क्या करते हैं, आप सिंपली इनसे कहते हैं आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, लेकिन मुझे अपनी फील्ड में इंटरेस्ट है और मुझे पता है फ्यूचर में इसकी स्कोप है, ठीक है? मैं आप ये नहीं कहते कि नहीं तुम गलत बोल रही हो, आप उसके ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन साथ साथ आप अपना जो ओपिनियन है तो वो भी शेयर करते हैं. यानी मेंटल बाउंड्रीज अबाउट योर ओपिनियन, योर वैल्यू, योर थॉट्स एंड योर पर्सपेक्टिव, ठीक है? ओके, मुझे कोई दिख ही नहीं रहा, मुझे ओके. Fourth, okay, number fourth is time boundary. Okay, it is related to your, okay, time boundaries help you protect your time and energy from being wasted or misused. अब टाइम बाउंड्री सिंपल आपको हेल्प करती है कि आपका टाइम जो है वो सेव रहे, आपके अंदर जो एनर्जी है वो सेव रहे, सही है? तो अब फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम बिजी, मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, मैं बिजी हूँ, तो मैं सिंपली जो टाइम बाउंड्री क्या होगी, मैं आज के अपने जितने भी और प्लान है वो कैंसिल कर दूंगी, या मेरी फ्रेंड मुझे भी बुला रही होगी तो मैं उसे मना कर दूंगी, सिंपल, बिकॉज मैं अभी इस वक्त टाइम बिजी हूँ. तो मैं अब इस तरह से आप टाइम बाउंड्री सेट करते हैं, ठीक है? फिफ्थ इज मटेरियल बाउंड्री. लाइक इट्स मटेरियल बाउंड्रीज इन्वॉल्व योर मनी, पोसेशन एंड द थिंग यू ओन. हर वो चीज जो आपकी है, ठीक है, उसके बारे में या आप डिसाइड करेंगे कि आप वो चीज किसी को देना चाहते हैं या किसी को देना नहीं चाहते, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपकी कजन है जो जब भी किसी फंक्शन में जाना हो तो वो आपसे ड्रेस फॉरवर्ड करती है, ठीक है? और जब उसे वापस करना हो तो वो डैमेज करके वापस करती है, ठीक है? और ये एक बार नहीं होता, ये बहुत बार आपने नोटिस किया है. अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम आप उसे अपना ड्रेस नहीं देंगे, आप सिंपली कह देंगे आई एम नॉट कंफर्टेबल लैंडिंग माई ड्रेस क्लॉथ्स एनीमोर बिकॉज दे ऑफन कम बैक डैमेज्ड. तो आप सिंपली मना कर देंगे, आप एक्सेप्ट कर देते मटेरियल बाउंड्रीज, आप अपनी चीजें शेयर नहीं करते फिर, ठीक है? ये आप पर होता है, आप डिसाइड करते हैं किसको आपको चीज देनी है और किसे नहीं. जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटीज में मेरे साथ ये होता था कि जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो अक्सर मुझसे मेकअप वगैरह ये चीजें लेती थी और वो वापस खराब करके देती थी, इस तरह से करके देती थी. तो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, मैंने अपनी बाउंड्री सेट कर दी, मैंने क्लियरली बोली कि मेरा मेकअप कोई यूज नहीं करेगा और आपको वाकई यूज करना है तो लाइक तो आप मतलब सही से यूज करके मुझे दीजिएगा, इस तरह से, ठीक है? अच्छा, फिर द लास्ट इज स्पिरिचुअल बाउंड्री. अच्छा, अब इट इज रिलेटेड टू योर बिलीफ, योर फेथ एंड योर प्रैक्टिसेस. यानी एक इंसान के पास जो राइट होता है वो किस चीज, उसका बिलीफ क्या है या उसका ईमान क्या है, उसके पास राइट है, ठीक है? हम किसी को भी फोर्सफुली रिलीजियस एक्ट करने पर नहीं कह सकते, ठीक है? वो उसकी मर्जी, वो रिलीजियस बनकर चले या नहीं, ठीक है? तो ये बाउंड्रीज की कुछ टाइप्स हैं. अच्छा, पहले मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं कि मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा. जी मिनाहिल, ना मुझे आवाज आ रही है किसी की, ना मैं अपनी स्क्रीन. योर वॉइस डिसअपीयर्ड. अब आ रही है आवाज? Minahil has raised her hand, so Minahil, if you want to say something, you can speak ओके, now. चलें कंटिन्यू. मिस आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, आई डोंट नो क्यों नहीं आ रही. मैंने बहुत किए, कब से मैं ये चेक करती लेकिन नहीं आ रही. जब से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तब से नहीं आ रही, ना मेरी वीडियो आ रही है ना मुझे आप लोगों की आवाज.
आई थिंक आपके ना उस पे आ रही होगी, अगर आप फोन काम पे लगाएंगे तो फिर वो स्पीकर शायद बंद हो जाते जिसके पास ऑडिबल नहीं था। हो सकता है मैं सफरा के स्क्रीन जी शेयरिंग मैंने के बाद स्पिरिचुअल उनसे बाउंड्रीज के ऑडियो बाद शेयर ना कुछ हुई हो, पढ़ाया ही नहीं, तो बताया ही इस नहीं, मैं वजह भी से भी हो कंटिन्यू सकता है करूंगी। कि उनको आवाज नहीं आ रही हो या हमें उनकी आवाज नहीं क्या नाम है? नहीं मेरा इंटरनेट बहुत Okay, जबरदस्त चल perfect. रहा है, मैं ऑफिस में बैठी हूँ। Faisal, let me share your slides. चलिए हम Let me do. कंटिन्यू करते हैं, जो आपके क्वेश्चंस होंगे ना वो हम एंड में थ्रू चैट्स कर लेंगे डिस्कस। Faisal, let me ओके share ये भी your ठीक है। slides. आप अपना माइक और कैमरा ऑन करना है तो कर लें, ओके तो मैं आपकी जो है ना स्लाइड शेयर कर लेती ठीक है। हूँ। Is that okay? अब मुझे आवाज आ रही है? ओके ठीक है, मैं लेट मी शेयर योर स्लाइड। ओके चल, I think you can all see the screen. Faisal, मेरी स्क्रीन शेयरिंग रुक गई है? हाँ जी, आई थिंक आपकी रुक गई है, मेरी अब नजर आ रही है। मेरी स्क्रीन शेयर रुक गई है। And I'm presenting your slides. People will see everything. ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। मैम स्लाइड चेंज कर दें नेक्स्ट वाली। ये हमने जस्ट सिंपली ना टाइप्स पढ़ी थी बाउंड्रीज की, ठीक है, इसको हमने गो थ्रू किया था जस्ट टाइप्स को, मेन टॉपिक आगे से स्टार्ट है, ठीक है। ओके ओके नाउ सबसे पहले चीज जो आती है वो ये है कि why is it so hard to say no in पाकिस्तानी फैमिली। हमारे यहाँ ना कहना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि हमारे यहाँ जो ना का वर्ड है ना, जो नो है, ये एसोसिएट कर दिया जाता है गिल्ट के साथ, शेम के साथ एंड फियर ऑफ डिसरिस्पेक्ट के साथ। अब सबसे पहले लिखा हुआ है कल्चरल नॉर्म्स, यानी कल्चरल नॉर्म्स एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर। हमारी पाकिस्तानी कल्चर में क्या होता है, जो हमारे एल्डर्स हैं उनको हम अथॉरिटी फिगर कंसीडर करते हैं, और क्वेश्चनिंग देम एंड रिफ्यूजिंग देम इज कंसीडर्ड एज बदतमीजी और डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। यानी आप अगर अपने बड़ों से कोई बात कहेंगी या उनको रिफ्यूज करेंगे किसी बात पे, उनको लाइक क्वेश्चंस करेंगी कि नहीं ऐसे तो नहीं होता, तो ये किस चीज में कंसीडर किया जाएगा? बदतमीजी में, ठीक है। ओके और दूसरी रीजन क्या होता है? आपका फियर ऑफ जजमेंट। देखिए इस चीज को तो हम सब एग्री करते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो हम डिसीजंस मेकिंग करते हैं वो लोग क्या कहेंगे इसकी बेस पर करते हैं, ठीक है। हम अगर छोटा सा डिसीजन भी करते हैं ना, कोई भी लाइक अपना फॉर एग्जांपल हम अपना करियर चूज करते हैं, तो हम वो करियर चूज करते हैं जो रिस्पेक्टेबल हो सोसाइटी में, जो लोग जिस करियर की रिस्पेक्ट करें। हम अपने इंटरेस्ट से अपने डिसीजन करियर चूज नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो हमारे लिए ना करें इसीलिए इतना मुश्किल है कि हमारे तो जो डिसीजन मेकिंग जब फेयर ऑफ जजमेंट पे बेस करते हैं, लोगों के कहने पे बेस करते हैं, तो ना क्या ही कहेंगे। हम शादी जल्दी कर लेते हैं, लाइक 24 में लड़कियां शादी कर लेती हैं, वरना लोग बातें बनाएंगे, लोग बोलेंगे ओहो लाइक अभी तक इसे शादी नहीं की, इस तरह के कमेंट्स आने लग जाते हैं। तो लोगों के फेयर से, लोगों के डर से आप ना नहीं कर पाते, आप उनके अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, एक पर्सन है, एक हमजा नाम का लड़का है। हमजा चाहता था कि वो फैशन डिजाइनिंग पढ़े, लेकिन उसके जो कजन्स थे, उसके पेरेंट्स ने उनको मना कर दिया कि आप फैशन डिजाइनिंग नहीं बन सकते, बिकॉज ये तो लोग क्या कहेंगे, लड़कियों वाली फील्ड में जा रहे हो। तो लड़कियां होती है फैशन डिजाइनिंग में, लड़के साइकोलॉजी चूज करते, तो उनपे भी ये होता है कि तुम्हारी क्लास में तो मतलब लड़कियां ही ज्यादा होती है साइकोलॉजी साइड भी। तो इस प्रेशर में क्या होता है, पर्सन अपनी मर्जी से अपना करियर भी चूज नहीं कर पाता। फिर उसको क्या मशवरा दिया जाता है कि बेटा आप इंजीनियरिंग साइड पे जाएं, आप लड़की हैं, लड़कों के लिए वो फील्ड अच्छी है, ठीक है। तो हमारे जो भाई डिसीजन जो होते हैं ना, वो लोगों के बेस पे होते हैं। तो ना कहना, तो यहाँ ये रीजन है कि आप ना नहीं कह पाते। थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गिल्ट। अब
देखिए हम सब इस बात को एग्री करते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग आवर्स उन्होंने हमारे लिए काम किया, अपना कंफर्ट दिया, आई एग्री दैट, ठीक है, हम इस चीज को मानते हैं। अब होता क्या है, हमारे अंदर ये चीज मतलब बनी हुई है, यार पेरेंट्स ने इतना कुछ किया है, तो उनके आगे जब हम ना कहने की बारी आती है ना, तो अपने आप में ही गिल्ट फील होने लग जाता है। हम खुद ही अपने आप को लाइक क्या कहते हैं, बैड चाइल्ड कंसीडर करने लग जाते हैं या सेल्फिश कंसीडर करने लग जाते हैं कि देखो माँ बाप ने अपने वक्त में इतना हमारे लिए किया, जब हमारी बारी आई तो हम उनके लिए ये नहीं कर रहे, हमने उन्हें ना कह दिया, तो लाइक खुद के अंदर ही ना गिल्ट आने लग जाता है। और ये गिल्ट क्यों आता है? बिकॉज ऑफ हमारे अंदर ये चीज कल्चरली डेवलप डाली जाती है बचपन से कि देखिए पेरेंट्स आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं, आप उनके लिए ये कर रहे हैं, और जब भी थोड़ा सा उनके अपोजिट हम कुछ कर ले अपनी मर्जी से, तो लाइक हम गिल्ट फील करने लग जाते हैं, ठीक है। योर चार्ज गेस करो। एक I मिनट। think, Fiza, let's ask the participants as well that according to them, why do what do they think that why is it so hard for us to say no to our family members or to the people around us? Anyone would like to share something their experience? Malaika Mushtaq have raised her hand. अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम अगर मैं यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ तो कभी-कभार ओके, ऐसा भी होता है कि हम लोग अब को ये चीज तो हो गई लाइक गिल्ट की। अब जो फोर्थ चीज आ जाती है वो आ जाती है ऑब्लिगेशन और पर्सनल हैप्पीनेस। अब बच्चों को हम बचपन से यही चीज सिखाते हैं, Fiza, हम चिल्ड्रन एज हमें चीज लगता है कि हम अपनी खुशियों can को you hear बाद me, में Fiza? देखें, लोगों के लिए पहले सोचें, ठीक है। हमारे अंदर ये चीज एक हमारे अंदर ये चीज एक डेवलप हुई होती है कि पर्सनल हैप्पीनेस बाद में आती है, लोगों की हैप्पीनेस पहले आती है, और हम क्या करते हैं, खुद के लिए नहीं, लोगों के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं, जैसे कि मेरे कजिन की शादी है, ठीक है, विद इन अ वीक या एक हफ्ते बाद, और मैं इस वक्त स्ट्रेस सिचुएशन में हूँ, मैं इस वक्त आइसोलेट सी हुई हुई हूँ, मैं किसी से बात नहीं करना चाह रही, लेकिन मुझे ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी कजिन की शादी है, तुम जाओ। I think Malaika was saying something. Would you like to क्या हो continue? रहा है, मेरी वॉइस नहीं है, मुझे तो किसी की वॉइस नहीं आ रही। यस मैं मैम दोबारा ज्वाइन आई करती वाज हूँ काम। एम आई ऑडिबल मैम? Yes, yes, you can speak, Malaika. मैम आई वाज सेइंग अबाउट दैट कि कभी-कभार ऐसे रीजंस भी होते हैं कि कुछ बच्चे इस तरह के एनवायरनमेंट में उनका ब्रॉट अप होता है जिनको ये लगता है कि लव इज कंडीशनल। तो उस तरह की सिचुएशंस में भी जो बच्चे ये सीखते हैं कि जो लव है वो कंडीशनल है, तो वो ना कहना अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने ना कह दिया तो उसके रिजल्ट में ये होगा कि लोग मुझे पसंद करना छोड़ देंगे, उनको मैं बुरा लगना शुरू कर दूंगा। तो मे बी उस केस में भी ये सिचुएशन होती है कि लोगों के लिए ना कहना मुश्किल होता है, वो हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, उनकी अपने आप की कोई बाउंड्रीज नहीं बनाते बिकॉज दे थिंक दैट लव इज कंडीशनल। Definitely. So we are having some glitch over here. Miss Fiza cannot hear any one of us. So she is going to rejoin it. और आपने बिल्कुल ठीक बात की है, when we think that love is conditional, तब भी हम उनको नो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम नो कह देंगे then no one is going to love us. So we have to say yes to make sure that everyone love us and we are part of the society or the people in our family. मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ, एक मिनट। हाँ फिजा प्लीज दोबारा ज्वाइन करो। Let's just wait for Fiza to rejoin and then we'll take your questions.
ओके, अच्छा अब बोले जरा कोई, लेट मी चेक, आवाज आ रही है नहीं? अंसर जी, जी जी, कैन यू हेयर मी? बस मुझे आवाज अभी भी नहीं आ रही और हर चीज क्लियर की है मैंने भी। और फिर आप क्या मैसेजेस करें इस पढ़ चीज लें, का? यू कैन जस्ट रिप्लाई ऑन द जो चैट बॉक्स है उनके मैसेजेस वहां पे पढ़ के, एंड देन क्वेश्चंस यू भी कैन। इसमें मिस हो रहे हैं सबके मुझसे। कैसे just read the If anyone wants to messages. share something, वो chat box में लिख दें because she cannot hear us. ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ, बिकॉज ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। ओके, आज डिनर सदन जी बिल्कुल, सोबिया का कमेंट है, क्योंकि नो एज अ डिसरिस्पेक्ट कंसीडर किया जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है हमारी सोसाइटी में। हमारे हमारे एल्डर्स के सामने स्पेशली जब आप ना कहेंगे तो उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कंसीडर किया जाएगा। यही तो आज चीज हमने लर्न करनी है कि हमें ना कहना कैसे, जिससे डिसरिस्पेक्ट भी फील नहीं हो और आप अपनी बात भी कह पाए। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा टॉपिक पढ़ने के बाद फिर मैं मैसेज आपके बार बार रीड करके आपको रिस्पॉन्ड करूँ। ठीक है, ओके, ठीक है। हम्म, हम्म, कहाँ थी, एक मिनट, लेट मी, कहाँ थी मैं? व्हाई इज इट हार्ड टू से नो टू सोसाइटी? ठीक है, अच्छा ठीक है। और जो फिफ्थ थिंग आ जाती है वो ये होती है रिलीजियस मिस इंटरप्रिटेशन। हमने जो अपने रिलीजियस को बहुत थोड़ा मिस इंटरप्रिटेट लिया हुआ है, लाइक ठीक है हम एग्री करते हैं, हमारे रिलीजियस हमें पेरेंट्स की खिदमत करना ये सब चीजें सिखाता है, पर वो कहीं भी ये नहीं सिखाता कि आप खुद को फुली सेक्रीफाइस कर दें। हमारे यहाँ ये होता है, हमारे पेरेंट, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि किसी लड़की का रिश्ता है, ठीक है, अब हमारे यहाँ पेरेंट्स क्या कहते हैं कि पेरेंट्स को पसंद है तो वो रिश्ता कर लो, बिकॉज हमारे पेरेंट्स के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है कि नहीं, जो पेरेंट्स ही सब डिसाइड करेंगे बच्चों के लिए, पेरेंट्स ही कहाँ उनकी मैरिज करवानी है कहाँ नहीं करवानी है, इन चीजों को थोड़ा मिस इंटरप्रिटेट किया गया। अब जब ये चीज क्लियरली है कि जब आप किसी का मतलब रिश्ता होता है तो उसमें मेल एंड फीमेल दोनों की रजामंदी होनी चाहिए, बट हमारे ये कॉन्सेप्ट नहीं है। लड़की ना ही नहीं कर पाती, आपके लिए रिश्ता आएगा तो आपको प्रेशराइज कर देंगे कि आप हाँ ही हाँ कहें उस रिश्ते के लिए, अगर वो पेरेंट्स को पसंद आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हमारे यहाँ रिलीजियस को भी मिस इंटरप्रिटेट किया जा रहा है। ठीक है, अब ये रीजंस थे कि हम ना क्यों नहीं कह पाते। अब मैं आप अपने क्वेश्चंस लिखे, मैं पूछती हूँ, मतलब मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ। ओके, okay, even if we say boundary, मैं स्लाइड चेंज कर दूं फिजल? ठीक है, आपकी बात ठीक है कि इससे बनाएंगे नहीं तो नहीं, देखिए बाउंड्रीज बना सकते हैं हम, लेकिन जाहिर है इसमें बहुत चीजें हमें हैंडल करनी पड़ेगी, हमें कमेंट्स टॉन्ट्स ये चीजें हैंडल करनी पड़ेंगी। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को कि कैसे बनाएंगे, कैसे हमें ये ड्रामा हैंडल करना है। जब जाहिर है जब आप पहली बार बाउंड्री सेट करेंगे ना, मैंने खुद की है, मैंने अपनी रियल लाइफ में इस चीज को अप्लाई किया है, और मैंने कैसे किया मैं आपको उस एग्जाम्पल के साथ ये चीज बताऊंगी। एग्जैक्टली, और ये चीज कोई नहीं मानता कि रिलीजियस बाउंड्रीज क्या कहती है, बिकॉज हमने क्या है ना मिस इंटरप्रिटेट किया रिलीजन को। खैर मेरा स्लाइड्स कहाँ चली जाती है? ओके, ठीक है, अब हम बात करते हैं इस हमने ना कहते हैं कैसे कहना है, किस तरीके से कहना है, वो सब हम आगे डिस्कस करें। पहले हम जरा
डिसएडवांटेज हम ये देख लें कि कैसे क्या रीजन है जिनकी वजह से हम ना नहीं कह पाते। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है द कॉस्ट ऑफ ऑलवेज सेइंग यस। अब जब आप हर बात पे, वो लोग जो हर बात पे हाँ कह देते हैं, या वो लोग जिनसे ना हो ही नहीं पाता, तो उसका उनको क्या नुकसान है। ठीक है, हम सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब जब आप ऐसे पर्सन बन जाते हैं जो लोगों को ना नहीं कह पाते और हर बात पे यस करते हैं, तो इससे होता क्या है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी मदर्स के एग्जाम्पल को लेते हैं। मेरी मदर है, मेरी मदर किसी को ना नहीं कहती। ठीक है, अब उन पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है। कैसे? उन्हें लगता है कि सबको खाना खिलाना उनकी जिम्मेदारी है, सबको अच्छा पहनाना, घर को साफ रखना, हर चीज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई है। ठीक, क्योंकि अगर कोई उन्हें कोई बात कह गया कि अम्मी ये कर देंगे, अम्मी वो कर दें, तो वो मना नहीं करेंगी। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि वो पर्सन जो हर बात पे यस कहता है, उसकी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, और लोग उसको बहुत लाइटली ले रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तानी जो डॉक्टर्स होती हैं, उनको ये चीज सिखाई जाती है, उनके अंदर ये चीज एक्सपेक्ट की जाती है कि वो एडजस्ट करें। लाइक कुकिंग बना करना भी उनका काम है, छोटे भाई बहनों की ख्याल रखना भी उन्हीं का काम है, गेस्ट आएंगे तो उनका काम है वो हैंडल करें, फैमिली फंक्शन भी वो अटेंड करें, किसी किसी को ना नहीं कहे, हमेशा हाँ ही कहे। हम एक्सपेक्ट करते हैं ना अपनी फैमिली से, फैमिली मेंबर्स वगैरह से। तो अब होता क्या है, वो इंसान जो हर बात पे यस कह देता है, कि ना नहीं कह पाता, वो बंदा स्ट्रेस की तरफ चला जाता है। ठीक है, जब आप ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं ना, तो आप स्ट्रेसफुल लीड करते हैं। जब मेरे साथ ये चीज हुई थी कि जो मेरी मदर है वो कुछ टाइम के लिए अहमदाबाद चली गई थी। अब हुआ क्या था, बीइंग द एल्डर सिस्टर, तो मुझे ऐसा लगता था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी हैं सारी, मेरा काम है मुझे घर को संभालना। सही है, ये सब चीजें मेरे अंदर आ गई थी। मेरा काम है अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रखना, मेरा काम है तो पापा को खाना देना, सब खाना बनाना। और मैं ना भी नहीं कहती थी, मेरे छोटे भाई बहन जो मुझे बोलेंगे मैं वो करने को भी तैयार थी। तो हुआ क्या, विद इन अ वीक मैं स्ट्रेस की तरफ चली गई थी। मैं परेशान, क्योंकि मैं थकी थकी सी रहती थी, पूरा दिन काम करो, पूरा दिन ये चीजें करो, ना भी नहीं कहती थी किसी को। हमेशा जी जो आप बोल रहे हैं, मेहमान आने को तैयार हूँ, कजन चाची आने को तैयार हूँ, मैं कहती थी ठीक है आप आ जाए, कोई इशू नहीं है। इससे क्या होता था, मैं स्ट्रेसफुल हो गई थी, मैं थक गई थी, मैं स्ट्रेस की तरफ चली गई थी। ठीक है, अब अब जब स्ट्रेस जो है, एक पर्सन जो स्ट्रेस ले रहा हो, तो वो किस तरफ लीड कर रहा होता है। देखिए होता ये, अब जब आप ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभाल रहे होते हैं ना, तो आप खुद की नीड्स को इग्नोर कर रहे होते हैं। होता क्या है, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होने लग जाती है। ठीक है, ओवर द टाइम जो आपका एंगर होता है, जो आपके अंदर गुस्सा होता है, वो रिजेंटमेंट तरह बन जाता है टुवर्ड्स फैमिली और फ्रेंड। और हमारे यहाँ एंगर को सप्रेस करना कॉमन है, हमारे यहाँ अपना गुस्सा दबाना कॉमन है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जब हमारी मदर्स जो 24 आवर किचन में होती हैं, काम कर रही होती है, वो गुस्से वाली सी हुई हुई होती है, हर वक्त उनका मूड ऑफ सा होता है, हर वक्त वो टॉन्ट कर रही होती है। क्यों? क्योंकि वो चीजें ना, जो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर हर काम करना, वो उनके अंदर ना एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा होता है, और वो अपना गुस्सा अपनी तरफ से वो दबा रही होती है, बिकॉज उन्हें तो लगता है सब उनका काम है, वो दबा रही। तो फिर वो चीज एज अ टॉन्टफुल वे इन चीजों में नहीं निकलती है। छोटी सी भी आप उनसे बात करेंगे तो वो एज अ लाइक गुस्सा तो नहीं, लेकिन एज अ टॉन्टफुल में वो निकल रही होती है चीजें। ठीक है, जाहिर है इंसान, हर इंसान की पर्सनल नीड्स होती हैं जिनको आपको पहले देखना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हमारी जो पर्सनल नीड्स हैं वो इग्नोर्ड हो रही होती है। जब जाहिर एक पर्सन जो हर वक्त दूसरों की फिक्र करेगा, दूसरों के बारे में सोचेगा, वो खुद के बारे में कैसे सोचेगा। ठीक है, अपने जिसको तो टाइम ही नहीं मिलेगा। अब फिर क्या होता है, साथ साथ जो आपकी सेल्फ आइडेंटिटी है ना, वो गुम होने लगती है। अब मैं आपको एक केस बताना चाहती हूँ उसमें। अब मेरी एक फ्रेंड है, वो भी साइकोलॉजी ग्रेजुएट है मेरे साथ। ठीक है, बहुत अच्छी है, पढ़ने में भी सब था, और वो साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड भी थी। हुआ क्या, उनकी फैमिली ने उनको प्रेशराइज किया कि बेटा हमें शौक है तुम सीएसएस करो, तुम छोड़ो साइकोलॉजी को, तुम सीएसएस करो। तुम मतलब उनके पेरेंट्स खुश होता है। ठीक है, उसने अपने पेरेंट्स के कहने पे साइकोलॉजी साइड पे रख दी,
और CHS स्टार्ट कर दिया। उसे CHS के बारे में कुछ नहीं पता था, बस इतना पता था पेरेंट्स ने कहा करने के लिए मैं कर लेती हूँ, पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, इस चीज के लिए उसने CHS स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ उसका उसका रिश्ता भी आया, और रिश्ता जहाँ पे वो नहीं करना चाहती थी वहां पे पेरेंट्स ने उसका रिश्ता भी दे दिया। ठीक है, यानी पेरेंट्स ने कहा देखो तुम बच्ची हो, तुम्हें अभी कुछ नहीं पता, हम बेहतर जानते हैं तुम्हारे लिए, एक तरह से उसका रिश्ता भी दे दिया। अब क्या हो रहा है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, वो डिप्रेशन में है, वो डिप्रेशन की साइड है। क्यों? क्योंकि क्योंकि एक तो उसकी सेल्फ आइडेंटिटी ही नहीं रही। जब मेरी उससे बात हुई थी तो वो ऐसी थी कि वो CSS नहीं करना चाहती, शी डोंट वांट टू डू दैट, लेकिन फैमिली के फैमिली के लिए वो कर रही थी। उसे नहीं पता था वो इंटरेस्ट किस चीज में लेती है, उसे ये चीज अब उसकी भूल गई थी। उसे बस ऐसा लग रहा था कि बस वो रोज उठती है और CSS के लिए उठ के पढ़ती है, और बस बस ऐसे उसकी लाइफ चल रही है। उसे लग रहा था बस उसकी जिंदगी गुजर रही है, वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रही। वो प्योर डिप्रेशन में जा चुकी है। वो किसी से बात नहीं करती, एक तरह से आइसोलेट हो चुकी है। खाना पीना उसने अपना बिल्कुल कम कर दिया है, क्योंकि एक तो मर्जी के मर्जी के बगैर रिश्ता होना, वो भी उस पर्सन से जो उसको पसंद नहीं था, लेकिन पेरेंट्स ने नहीं मानी, और उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं है। उसने कोशिश भी की 1-2 बार, लेकिन नहीं मानी पेरेंट्स ने। ठीक है, और सेकंड थिंग, वो फील्ड में जा रही है जिसमें उसे इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो क्यों चूज कर रही है? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, सबने, क्योंकि लोगों को लगता है CSS एक बहुत रिस्पेक्टेबल फील्ड है, आप इसमें जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या होगा। तो अब इन चीजों की वजह से क्या हो रहा है, उससे अपनी आइडेंटिटी तो वो खो चुकी है, उसे पता ही नहीं वो क्या है, वो ना अपनी फील्ड में इंटरेस्टेड है, ना वो घर में खुश रहती है, ना कुछ। ठीक है, अब ये चीज क्या हो रही है, आपके अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज को बढ़ा रही है, आप डिप्रेशन की साइड जा रहे होते हैं, आप एंग्जाइटी की साइड जा रहे होते हैं। ठीक है, अब मैं अगर आप लोगों के क्वेश्चंस देखूं क्या है। Inconveniences. Exactly, Amna, exactly. देखिए फिर जो तूबा का कमेंट है, आई started saying no to people, now I have become distant, so now people don't talk to me as much. हाँ, ये चीज होती है। देखो, ये चीज आपके साथ वो लोग करेंगे जो आपके साथ इसलिए कम्युनिकेशन, इसलिए बातचीत में थे कि आप उनसे बेनिफिट हो रहा था। देखिए सिंपल ये होता है, जैसे स्कूल में मेरी एक क्लासमेट है, ठीक है, वो अपने नोट्स किसी के साथ शेयर नहीं करती थी। ठीक है, वो मना कर देती थी, नो, मैं क्रिएट कर दी थी बाउंड्री उन्होंने, कि वो ना कह देती थी कि मैं अपनी ये चीज नहीं दूंगी। ठीक है, अब होता क्या है, लोग अगली बार उसके पास जाते ही नहीं है वो चीज मांगने। आप खुद सोचिए ना, आपके ग्रुप है, आप 4 आपके 4 फ्रेंड्स है, फॉर एग्जाम्पल आपके 4 फ्रेंड्स है, ठीक है। अब आपको पता है ये 3 आपके दोस्त हैं, ये तो आपको ना ही करेंगे, लेकिन जो 4th 1 है ना, कि जो हमेशा आपको हाँ करेगी, ये ना नहीं कहती, तो आप अपने काम भी ना उस 4th 1 पे डाल रहे होते हैं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, क्योंकि हम उन इंसानों को हल्का लेने लग जाते हैं। जब हमें पता है ना सामने वाले ने बाउंड्री सेट की हुई है, सामने वाला इतनी आसानी से आपकी बातों पे हाँ नहीं कहेगा, या आप अपने लिए पहले सोचेगा, तो फिर ऐसे लोगों से लोग करते हैं डिस्टेंस। कोई बात नहीं, तो कोई इश्यू नहीं है, मेरे साथ भी हुआ है। मैंने खुद पर्सनली ये बाउंड्रीज वाली चीज जब ये टॉपिक में पढ़ने लगी थी ना, मैंने उसके साथ साथ अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू किया था, बिकॉज 2 मंथ पहले हमें ये टॉपिक मिला था, और मैंने जब ये चीज पढ़ रही थी, मुझे भी इतना नहीं पता था बाउंड्रीज के बारे में, मेरी खुद की बाउंड्रीज भी सेट नहीं थी, लेकिन मैंने ये चीज अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू की थी, और मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे किया। बहुत मुश्किल होता है, आपसे लोग डिस्टेंस करेंगे, लेकिन वो आई थिंक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, आहिस्ता से लोग समझने लग जाते हैं। ठीक है, they call us egoistic and attitude वाला because we say no to them, बोलने दें। लेकिन ठीक है, होता है कि हम भी ये करते हैं कि देखिए, ये ज्यादातर उनको कहा जाता है जो बिल्कुल ही हर बात में ना करें। लेकिन एक होता है ना पर्सन, ठीक है, अब मुझसे किसी ने हेल्प मांगी और उस वक्त मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकती थी, तब मैं उसे ना कह रही हूँ। ठीक है, तब मैं उसे ना कह रही हूँ, गुड। एक वो वाले पर्सन आ जाते हैं ना, जिनको मतलब घर नहीं नहीं कुछ, और ना ही ना कहते, उसको मे भी लेबल किया जाता है उससे, बट यू फील सो गुड आफ्टर सेटिंग, यस एग्जैक्टली,
जब हम बाउंड्री सेट कर लेते हैं ना, उसके बाद एक रिलीफ मिल जाता है। क्यों? क्यों हमें एक सुकून मिलता है? बिकॉज हमें पता होता है हम उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमें पता होता है हम उन चीजों के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम उन चीजों के रिस्पॉन्सिबल है जो हम फील कर रहे हैं। सिंपल। वाई डू वी फील गिल्टी? देखिए, मैंने आपको बताया है, ये चीज हमने डिस्कस की थी। हम गिल्टी इसलिए फील करते हैं बिकॉज हमें जैसे पेरेंट्स की मैंने एग्जांपल दी थी। हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए, हमारे लिए बहुत कुछ लाइक अपने कंफर्ट जोन को गिव अप किए, सब कुछ किया है। तो अब जब उनको हम ना कहते हैं ना, तो हमें गिल्टी फील होता है। ये नेचुरल है। आप फील करेंगे गिल्टी कि यार एक पर्सन ने मेरे लिए इतना किया, लेकिन अब जब वो मुझे कुछ कह रहा है तो मैं मना कर रहा हूँ, तो ये चीज गिल्टी फील करवाएगी, इट्स नेचुरल। लेकिन लेकिन आप ये भी तो देखिए, आप ना कह क्यों रहे हैं? आप ना इसीलिए कह रहे हैं ना कि आपकी वो बाउंड्रीज को ब्रेक कर रहे हैं, कि आपकी बाउंड्रीज वायलेट हो रही है। ठीक है, गिल्टी फील होना कॉमन है, लेकिन जब एक बार आप ये चीज सेट कर लेंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो गिल्टी वाला इमोशन है ना, ये कम होने लग जाएगा। ठीक है, वी लर्न ways to say actually we should learn ways to say no and set boundaries। बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ ग्रोथ के लिए। जिन्होंने हैंड रेज किया है वो प्लीज कमेंट में अपना जो भी क्वेश्चन है वो लिख दीजिएगा, बिकॉज आवाज नहीं आ रही है आप लोग की। बट पर्सनली वी शुड नो द रीजन फॉर सेटिंग बाउंड्री। ये चीज भी हम करते हैं इसका, हमें रीजन पता होना चाहिए कि बाउंड्री क्यों सेट करें। ओके, ठीक है। अच्छा मैम, स्लाइड चेंज कर दें। इस वजह से बहुत जी, बहुत ज्यादा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, और फिर जाहिर है जब आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहे होते हैं तो फिर आपको अपने लिए कहाँ टाइम मिलेगा? मैं पूरा दिन घर वालों की हर बात को मान रही हूँ, तो मैं अपने लिए कब कुछ करूंगी? मेरी सेल्फ ग्रोथ का क्या? इसीलिए हमें बाउंड्री सेट करनी है। मैं आपको ये नहीं कह रही, लिटरली जब मैंने अपनी मदर ने मुझसे पूछा ना, बेटा कौन से टॉपिक पे प्रेजेंटेशन दे रही हो, तो मैंने उनको बताया कि अपनी टॉपिक है द आर्ट ऑफ सेइंग नो, कि हमें ना कैसे कहना है। तो मेरी मदर का पता है पहला कमेंट क्या था? कि तुम लोगों को बिगाड़ रही हो, लोगों को ये कह रही कि ना कैसे कहना है। तो ये चीजें होती हैं। अच्छा, ओके। देखिए, आप मना मना करते नाराज होते हैं, कोई बात नहीं, वो वक्ती तौर पे नाराज होंगे। कोई भी छोटी सी बात पे ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं नाराजगी चलती आपके लिए। मुझे लगता है आपके लिए दूसरों की नाराजगी से आपकी खुद जो आपका अपना आप है ना, जो आपका सेल्फ है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं द अब हम बात करते हैं द आर्ट ऑफ सेइंग नो। अच्छा, अब ना कहना कैसे है, किस तरीके से कहना है कि रिस्पेक्टफुल वे भी हो सामने वाले के लिए भी और आपके लिए भी। ठीक है, ओके। देखिए, सबसे पहले तो ना एक मिनट, ये क्या हो रहा है? ओके ओके, मैं आ गई वापस। स्लाइड्स दिख रही है, ठीक है, स्टार्ट करती हूँ। ओके, अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द आर्ट ऑफ सेइंग नो। ठीक है, अब ना कैसे कहना है, हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये चीज अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए कि learning to say no is not about being rude or selfish. It's about protecting your time, your energy, and your well being while maintaining respect for others.
ना कहना कोई सेल्फिश नहीं होता। मैं ये किसी को किसी चीज से मना कर रही हूँ तो आई एम नॉट सेल्फिश, ये मैं रूड नहीं हूँ। ये चीज पहले हमने खुद को समझानी है, क्योंकि हम ये तो कह रहे हैं सामने वाले ने हमें ये कमेंट कर दिया कि तुम बहुत रूड हो, तुम नखरे दिखाती हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे खुद के अंदर भी ये चीज होता है, हमें खुद भी ये फील होता है कि हाँ मैं रूड हूँ, मैं सेल्फिश हूँ, मैं देखो अपने लिए सोच रही हूँ। नहीं, अगर आप बाउंड्री सेट कर रहे हैं, अगर आप ना कह रहे हैं तो ये रूड नहीं है। ठीक है, अच्छा, बिकॉज healthy people set limits not to push people away but to build stronger, honest and balanced relationship. हम इसलिए नहीं लोग बाउंड्री सेट कर रहे हैं कि हम लोगों से दूर हो रहे हैं, नहीं, बल्कि हम इसलिए बाउंड्री सेट कर रहे हैं ताकि जो हमारा रिलेशनशिप है लोगों के साथ वो हेल्दी हो, एक ऑनेस्ट हो, एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप हो। ठीक है, अब आपको अच्छा आपको पता होना चाहिए आपने ना कब कहना है और आपने हाँ कब कहना है। मैं फ्लाइट चेंज कर दें। ओके, सबसे पहले तो आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मी एंड व्हाट इज नॉट मी। ठीक है, यानी आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि किस चीज के आप रिस्पॉन्सिबल हैं और किस चीज के आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, लाइक मेरी चॉइसेस, मेरी फीलिंग्स, मेरी थॉट एंड मेरी वैल्यूज, इन सब चीज के मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन दूसरा मेरे बारे में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है, ये दूसरा मेरे बारे में क्या फील कर रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ। जब आपको खुद की लिमिट पता होगी तो आपके लिए बाउंड्री सेट करना आसान हो जाएगा। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपने हाँ कब कहनी है। आपने किसी की बात में हाँ तब कहनी है when it matches your values, जब आपकी वैल्यूज से मैच कर रही हो बात। ठीक है, जब आप रियलिटी में किसी की हेल्प करना चाह रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ फियर और गिल्ट। ठीक है, जब आपके पास टाइम हो, एनर्जी हो कुछ काम करने की। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया, कहा कि या कजन्स, ठीक है, मेरे कजन्स ने डिसाइड किया कि हम फार्म हाउस का प्रोग्राम बनाते हैं। मैं रियल एग्जांपल दे रही हूँ, मेरे साथ कल हुआ है ये चीज। ठीक है, अब मेरी जो फैमिली है वैसे तो वो कहीं जाती नहीं है, बहुत कम ही निकलते, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम फार्म हाउस जाते हैं। ठीक है, अब मैं नहीं जाना चाह रही थी। ठीक है, मैं फार्म हाउस नहीं जाना चाहती थी बिकॉज मुझे ये प्रेजेंटेशन भी तैयारी करनी थी और साथ ही साथ मैं जॉब भी कर रही थी, मुझे वहां भी जाना होता था, तो मैं नहीं जाना चाह रही थी। और ऊपर से वो सारे बच्चे थे, बड़े थे, मेरी एज का कोई नहीं था। तो मैंने कहा नहीं, मेरी एक तरह से वैल्यूज से मीट नहीं हो रहा था, मुझे किसी, और मेरा दिल भी नहीं था किसी के साथ जाऊं। तो मैंने उनको सिंपली मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँ। मैंने, क्योंकि वो चीज मेरी वैल्यूज से मैच नहीं करी थी, ना मैंने उनके साथ दिल था जाने का। लिटरली उन्होंने मुझे प्रेशराइज किया था, बच्चे थे, सब आए थे कि पिज्जा आप ही चल रहे हैं आप, मैंने मना कर दिया। द रीजन इज कि मैं नहीं जाना चाहती थी, मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लाइक इंटरेस्ट नहीं था मेरा उनके साथ जाने में। ठीक है, लाइक ना मेरे पास टाइम था, बिकॉज वीकेंड में एंजॉय कर चुकी थी और मुझे अपनी इंपॉर्टेंट काम भी था ऑफिस में, तो मैं इसलिए भी नहीं जाना चाहती थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने उनको ना किया, मैंने उनको यस नहीं कहा। यस मैं तब कहती कि फॉर एग्जाम्पल अब वीकेंड आ रहा है, सैटरडे आ रहा है, ठीक है, मेरी फ्रेंड्स में कोई प्लान बनाती है और मैं वाकई उनके साथ जाना चाहती हूँ, मैं वाकई एंजॉय करना चाहती हूँ, तो मैं उन्हें हाँ कहूँ। बाकी वो मेरी ऐसी जगह जा रही है जहाँ मैं खुशी से जाती हूँ तो मैं उन्हें हाँ कहूंगी। ये बाकी सैटरडे को मेरे पास टाइम है तो मैं हाँ कहूंगी। ठीक है, ये वो चीजें होती है जहाँ पे आपको पता होता है आपको यस कह रहे हैं कि नहीं। ठीक है, मैं अपनी छोटी कजन को पढ़ाती हूँ, लाइक वो आती है, कुछ उसको कुछ समझ नहीं आता तो मैं उसे एक्सप्लेन कर देती हूँ, समझा देती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वाकई उसकी हेल्प करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ बच्ची थोड़ा सा अच्छा सा पढ़े, से चीजें समझ आए। इसीलिए नहीं, मैं इसलिए ऐसे नहीं पढ़ाती कि मैं ये सोच रही हूँ कि यार मेरी खाला क्या कहेंगी तुमने मेरी बेटी को पढ़ाया नहीं, इसलिए नहीं पढ़ाती। मैं इसलिए पढ़ाती हूँ कि मैं वाकई जेन्युइनली उसकी हेल्प करना चाहती हूँ कि वो अच्छे स्कोर करे। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपकी मदर, लाइक आपकी मदर कहीं गई हुई है, लाइक हॉस्पिटल गई है, आपके रिलेटिव बीमार है तो वो उनके पास हॉस्पिटल है, अब आप घर पे अकेले। ठीक है, अब आपकी मदर ने आपसे कह दिया कि फिजा बेटा घर पे बहन भाइयों को छोटों को देख लेना, मैं आज के दिन बाहर जा रही हूँ। तो इस सिचुएशन में जब आप वाकई अपने पेरेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं तो आप यस कहेंगे। आप यस कहते हैं, ठीक है, मदर सही कह रही है, उन्हें बाहर जाना है, तो मैं घर में बैठ के थोड़ा भाई बहनों का ख्याल रख लूँ। ठीक है, इसमें आप अपनी उस चीज को, बिकॉज यू आर समटाइम
आप हेल्प करना चाहते हो, थोड़ी बहुत आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है, ठीक है। इस सिचुएशन में जब आप बाकी हेल्प एक हेल्प की तरह से करना चाह रहे हैं ना, तो आप हेल्प करें। मैं इसीलिए घर में बच्चों को नहीं संभाल रही कि मुझे ये डर है कि मेरी ये लोग क्या बोलेंगे, बड़ी बहन है और बच्चों को पूछ नहीं रही। नहीं, मैं इसीलिए कि मैं वाकई अपने बहन भाइयों को केयर करना चाहती हूँ, ठीक है। ये तो हो गया व्हेन टू से यस। और व्हेन टू से नो, नो कब कहना है? नो आप तब कहते हैं, इसके बाद में आप लोगों के मैसेजेस पढ़ती हूँ। नो आप कब कहते हैं? जब कोई रिक्वेस्ट या कोई ऐसी बात आपसे कर रहा हो जो आपकी पर्सनल लिमिट्स को ब्रेक कर रहा हो, ठीक है, या आपकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर इम्पैक्ट डाल रहा हो, ठीक है। या आप कह दें आप इसलिए भी ना कह रहे होते क्योंकि अगर आप जो हाँ कह रहे होते वो बिकॉज ऑफ गिल्ट और फियर कह रहे होते, ठीक है। अब इसमें हम एग्जाम्पल्स के थ्रू बात करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मिनट, ओके। जब आपकी आपने पर्सनली, अब आप लाइक मैं इस वक्त आपको प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ बैठ के अपना काम कर रही हूँ। अब सडनली मुझे कोई आके कहता है कि नहीं छोड़ो ना, प्रेजेंटेशन पहले मेरा काम कर लो, तो आप बताएं मैं क्या कहूंगी उसको? ना ही करूंगी ना। क्यों? क्योंकि सब मेरी पर्सनल लिमिट्स को, जब मैं एक काम कर रही हूँ उसको वायलेट करके कह रहा है कि मैं पहले उसकी चीज करूँ, ठीक है। इस तरह से कोई आपको कहता है तो फिर आप ना ही कहते हैं। या ऐसी चीज में आपसे काम करवाना, लाइक आप जॉब लेने गए हैं, ठीक है, अब डिफरेंट जगह जॉब अपॉर्चुनिटीज आती है, कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज नाइट में आती है कि आप रात में आके जॉब करें, तो वहां जॉब नहीं कर रहे होते, अब ना ही कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है रात में आप पूरी जागेंगे, फिर आपकी लाइक रात को अपनी नींद नहीं मिलेगी, जैसे आपकी मेंटल हेल्थ पे कोई चीज इफेक्ट डाल रही हो ना, तो भी आप ना कह रहे होते हैं, ठीक है। या आप ऑलरेडी एग्जाम का स्ट्रेस ले रहे हैं, आपका एग्जाम है और आपकी फ्रेंड कह रही है आओ ना घूमने चलते, खैर एग्जाम होते रहते, नहीं, आपने ना कहना है, आप नहीं जाएंगे क्योंकि आपके लिए आपके एग्जाम पहले है, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशंस होती हैं जिसपे आप ना कहते हैं, तो चीज आपसे कि एग्जैक्टली करियर अपॉर्चुनिटीज मैं आपको बाद में बता दूंगी, बिकॉज अभी हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो इट्स अबाउट बाउंड्रीज, तो उस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आपको ये बता देंगे आफ्टर ग्रेजुएशन हम क्या कर सकते हैं। एग्जैक्टली जनरेशन, देखिए हमारे अंदर हमारे यहाँ ना बहुत सी चीजें ऐसे ही चल रही हैं, जनरेशन बाय जनरेशन चल रही है। अब उसे किसी ने तो तोड़ना है ना, किसी ने तो वो चीजों को ब्रेक डाउन करना है ना। नहीं तो अगर आज मैं ब्रेक डाउन नहीं करती, आज मैं बाउंड्रीज सेट नहीं करती, कल को मैं अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी नहीं सिखा पाऊंगी, मैं उन्हें भी नहीं कह पाऊंगी कि बेटा उनके साथ भी बाउंड्री सेट नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। हमारे लिए मुश्किल लफ्ज लेकर आते हैं, लेकिन जो आप जो डिफरेंट टॉपिक आ जाएगा। अच्छा, इसको और हम डिटेल में जाते हैं, ठीक है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखें, ये तो हमने सीख लिया कि हमें अपनी लिमिट्स का पता होनी चाहिए, ठीक है, हमें ना कब कहना है और हमें हाँ कब कहना है। जब आप ट्रूली किसी की हेल्प करना चाहें, बाकी किसी के साथ सिंसियर होकर काम करना चाहें, तो यू कैन से यस। लेकिन अब बिकॉज ऑफ फेयर, बिकॉज ऑफ गिल्ट, ये चीज आपसे मैच नहीं कर रही, आप वो आपकी पर्सनल चीज लिमिट्स को ब्रेक डाउन कर रही है, तो आप यू कैन से नो, ठीक है। ये चीज तो आपने पढ़ ली। अब इसको बोलने का तरीका पढ़ते हैं। देखिए हमारी जनरेशन में थोड़ा ये इशू है कि अब ना जो हम कहते हैं ना वो थोड़ा डिसरिस्पेक्ट वे में कह रहे होते हैं अक्सर। जैसे मैंने अपनी फॉर एग्जाम्पल अपनी बहन को कहती हूँ यार थोड़ा सा काम कर दो, तो वो ये नहीं कहेगी कि मैं तुम्हें अभी काम नहीं करके दे सकती, तो वो बदतमीजी वे में मुझे कह देगी नहीं मैं नहीं करी, अपना काम खुद करो। अब ये ना का तरीका हुआ तो फिर दायरे सामने वाला आपसे हर्ट ही होगा, सामने वाला यही सोचेगा ना कि कैसे मना करिए, वो बात नहीं करेगा। लेकिन ना करने के भी ना तरीका होता है। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। अब हमने पहले तो देखना है कि हमने कैसे रिस्पेक्टफुली ना कहना है, रिस्पेक्टफुली एंड कॉन्फिडेंटली हमने ना कहना है। सबसे पहले जो आपकी स्टेटमेंट होगी ना, जो आप बात करेंगी वो क्लियर होनी चाहिए और डायरेक्ट होनी चाहिए।
घुमा फिरा के आपने बात नहीं करनी। आपकी फ्रेंड ने कल आपको बुलाया है अपने साथ, अपने घर पे इनवाइट किया है, आप नहीं जा सकते, आप उसे क्लियरली कह ले, क्लियरली कम्युनिकेट करें, यार आई एम सॉरी, आई कांट अटेंड दिस इवेंट, क्लियरली, ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि यार मैं सोच के बताती हूँ, क्यों? इस चीज से आप खुद को भी कंफ्यूज करते हैं, मुझको भी कंफ्यूज करते हैं कि यार मैं सोच के बताती हूँ। नहीं, अगर आपका कोई डिसीजन है तो आपने से क्लियरली डायरेक्टली बात करनी, ठीक है। सेकंड थिंग इज डोंट ओवर एक्सप्लेन। जब आप ओवर एक्सप्लेन करते हैं ना कोई चीज, तो इट शोज योर इनसिक्योरिटी। अब मैं किसी बात को बहुत, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे मना करना है अपनी दोस्त को, और मैं, क्योंकि जब मैंने अपने साथ, अच्छा मैं आपको अपने साथ भी बताती हूँ, जब मैंने बाउंड्री सेट करने लगी थी ना, तो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बुलाया था, ठीक है। अब उसने ये क्या, देखिए वो फ्रेंड ना बहुत हमारी टाइम बाद मीटिंग थी, लाइक 5 to 6 मंथ बाद ना। वो हैदराबाद में रहती है, वो यहाँ होती नहीं है, तो कभी लाइक ईयरली वो 2 या 3 टाइम्स आती है, और मैं हमेशा उनसे मिलने जाती हूँ, हमेशा अपनी फ्रेंड से मिलने जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि हम बचपन से बॉन्डिंग थी। लेकिन अब, और मेरी आदत थी, मैं कभी अपने दोस्तों को ना नहीं कहती थी, हमेशा हाँ कहती थी। वो कहते थे और फिजा भी कहीं चले, मैं कहती थी यस रेडी, ये वाला मेरा सीन था। लेकिन अब उसने जब मुझे बुलाया ना, उस टाइम मुझे लग रहा है मैं उस वक्त डिप्रेशन में खुद गई हुई थी, मैं खुद उस वक्त आइसोलेट हुई हुई थी, मैं अपनी फैमिली मेंबर से भी बात नहीं करती थी, मैं खुद उस वक्त जिस सिनेरियो से गुजरी थी। अब खैर वो चीज मैं उसे बताना नहीं चाह रही थी। अब उन सबका मिलने का प्रोग्राम बना, ठीक है, लाइक फ्राइडे वाले दिन सब मिलने का प्रोग्राम, ये वो चाह रहे थे कि वो मेरे घर आकर मुझसे मिलने, लेकिन मैं उस वक्त किसी से मिलना नहीं चाह रही थी। तो पहली बार मैंने उससे कहा था कि नहीं यार मैं नहीं मिल रही। तो सब हैरान थे कि फिजा कैसे मना कर रही है, फिजा क्यों मना कर रही है, वो नहीं मिल रही। तो मैंने उसको कहा कि नहीं यार बस मैं नहीं मिल रही, मुझे नहीं मिलना। अब मैंने उसको कोई रीजन नहीं दिया, ठीक है। फिर अब वो ज्यादा जब मैंने उसको ओवर एक्सप्लेन करने, लेकिन हुआ क्या, मैं ओवर एक्सप्लेन करने लगी। मैंने कहा यार ये रीजन है, बस मैं नहीं मिल सकती प्लीज। वो मुझे ना बार बार प्रेशराइज कर रहे होते हैं, फिर वो आपको बार बार सामने नहीं नहीं ना मिल लो प्लीज मिल लो, लेकिन नहीं, मैंने जब एक चीज सेट कर दी थी ना कि मुझे नहीं मिलना तो नहीं मिलना। अब हुआ क्या, जब फ्राइडे का डे आया, जब वो लोग मिलने लगी, तो लिटरली मेरे अंदर ना एक गिल्ट सी चीज आने लगी थी कि बेचारी इतने टाइम बाद आई और मुझसे मिलने से मना करे, मुझे गिल्ट हो रहा था अपने अंदर। लेकिन लेकिन चूंकि मैंने चीजें पढ़ी हुई थी, तो मैंने कहा मैं नहीं मिलूंगी। इवन तो फ्राइडे का डे था, और मेरे मेरे तो थॉट में ये चीज आ रही थी कि यार एक बार मिल के आ जाती हूँ उससे, बार बार आ रही थी, लाइक हमें खुद पे ही कंट्रोल नहीं होता। बट फिर भी मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, मैंने अपने आप को समझाया नहीं फिजा, आपने उन्हें मना कर दिया, अगर अब आप जाती हैं तो आपकी जो स्टेटमेंट होगी वो झूठी कहलाएगी कि आप मिल नहीं सकती थी, आपको तो ये इश्यूज थे, और अब आप चली जाती हैं तो वो एक चीज ऑनेस्टी कम हो जाएगी। तो आपने जब उन्हें मना कर दिया तो आप ना जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम भी जब मैं उन्हें किसी चीज के लिए मना करूं तो उन्हें पता हो कि हाँ ये मना करी और अब नहीं आएंगे, ठीक है। अब मैंने बहुत तरीके से बहुत रिस्पेक्टफुली मना किया था ताकि उन्हें बुरा नहीं लगे, ठीक है। अच्छा, पहले हमने बात की कि आपकी स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए। सेकंड थिंग, ओवर एक्सप्लेन नहीं करना। थर्ड थिंग, यूज आई स्टेटमेंट। ये मैं सिर्फ बाउंड्रीज के लिए नहीं कहूंगी, मैं आपको वैसे ही कहना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में आई का वर्ड ज्यादा से ज्यादा यूज करें इंस्टेड ऑफ यू, ठीक है। आई स्टेटमेंट यूज करने से क्या होता है, जो भी चीज हो रही होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद ले रहे होते हैं, ठीक है। दूसरे को टॉन्ट या दूसरे को नहीं शो कर रहे होते कि वो पर्सन बर्डन है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अपनी फ्रेंड को कहा आई फील टायर्ड एंड आई नीड रेस्ट, सो दैट्स व्हाई आई कांट हेल्प यू टुडे, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि यार तुम लोग ज्यादा बोल रहे हो, तुम लोग ज्यादा तंग कर रहे हो, ये नहीं। मैंने कहा मैं थकी हुई हूँ, मैं नहीं आ सकती, मेरे लिए इश्यूज है। तो आई स्टेटमेंट जब आप करते हैं ना, तो इसमें दूसरे पर ब्लेम नहीं जाता, ब्लेमिंग वाली चीज नहीं जाती दूसरे पे, ठीक है। आप खुद उस बात को अपने ऊपर ले रहे हो तो, ठीक है। फोर्थ थिंग इज दैट एक्नॉलेज बट स्टे फर्म। आप दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करें, लाजमी नहीं कि दूसरा आपको कोई गलत चीज पे बुला रहा है या कुछ ऐसा ही है, नहीं। मे बी उसके लिए वो आपको अपने इवेंट पे बुला रहा है, मे बी वो इवेंट इंपॉर्टेंट हो। आप आपने क्या करना है, आपने उसकी बात को अंडरस्टैंड करना है। आप कहें यस आई अंडरस्टैंड दिस इज इम्पोर्टेंट टू यू, बट आई हैव टू से नो फॉर माई ओन वेलबींग। लेकिन मैं ना इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे लिए इश्यूज है, मैं नहीं आ सकती मेरे साथ। अब मैं खुद सोचती हूँ, मैं खुद स्ट्रेस में थी, मैं खुद आइसोलेट हुई थी, मैं उनसे जाके कैसे मिलती, मैं क्या उनसे डिस्कस करती, उल्टा और ज्यादा बातें बनती कि क्या हो गया, इस तरह से चीजें होती ना। तो आप दूसरों की चीज को वैल्यू दें, एक्सेप्ट करें कि वो चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्नॉलेज करें दूसरे की बात को, लेकिन क्लियरली और पोलाइटली वे में आप मना कर दें कि आप अपने लिए नहीं आ पा रहे।
ठीक है। द फिफ्थ थिंग इज प्रैक्टिस पोलाइट असर्टिव। देखिए असर्टिव होना तो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाय चांस हमारे यहाँ असर्टिवनेस बहुत कम है, हमारी सोसाइटी में ही नहीं है। मैं इंशाल्लाह, मेरी कोशिश है कि असर्टिव के मेरे पास ना नोट्स पड़े हैं, मैं हैंडआउट से जो मुझे यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किए थे वो बहुत बेस्ट हैंडआउट से, अगर वो मुझे मिले तो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। असर्टिव होके जब आप, जो इंसान असर्टिव हो जाता है ना, उसकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स वैसे ही कम होने लग जाती है। ठीक है, लाइक आप पोलाइटली वे में सामने वाले को बात को मना करें। ठीक है, कि आई स्टेटमेंट यूज करें, पोलाइट और क्लियर होकर अपनी बात को कहें, डोंट ओवर एक्सप्लेन, ये तरीके होते हैं कि आप ना कहते हैं। ठीक है, I was a wonderful session with another generation. ठीक है, आपने assertiveness, yes, मैं assertiveness की ही बात कर रही हूँ, टर्म assertive यूज करती है, assertiveness की ही बात कर रही हूँ। देखिए एनवायरमेंट जब आपको ट्रिगर कर रहा है अपनी मेंटल, देखिए जब आप बाउंड्री सेट करेंगे ना, देखिए ये चीज हम आगे ड्रामा कैसे हैंडल करना मैं बताती हूँ। देखिए बाउंड्री सेट करेंगे आपको प्रॉब्लम्स तो बहुत आएंगे, मैं आपको ये नहीं कह रही आपने किसी को एक बार ना कह दिया तो वो बेचारा चुपचाप चला जाएगा, आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की। आपने कंसिस्टेंस रहना है, आप लोगों के कमेंट सुनने पड़ेंगे, कुछ लोग बात भी नहीं करेंगे। जी होती है, बस मैं से एंड कर रही हूँ क्लास को, बस लास्ट के 5 मिनट, बस मेरा लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है। ठीक है जी, मैं आपको भेज दूंगी, मेरे पास अवेलेबल हुए मेरे सर्टिफिकेट के नोट। ठीक है, ओके, लास्ट एंड सिंपल, बस हम ये बात करते हैं। मैम स्लाइड चेंज कर दें। ओके, देखें, अब जब आपने अपनी लाइफ में ये चीज ले आए, आपने बाउंड्री सेट करना शुरू कर दी, ना कहना जहाँ पे आपकी लिमिट्स को ब्रेक किया जाता है, वहां पे जब अपनी चीज शुरू कर दी तो होगा क्या, बहुत से कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। ठीक है, ये कॉमन है। आपने अपने पेरेंट्स को किसी बात पे मना किया तो आपको पता है पहला कमेंट क्या आएगा, हम तुम्हारे लिए इतना कुछ करते, पूरा पूरा दिन तुम्हारे लिए खाने बनाती, तुम्हें छोटी सी बात बोलती तुम मना कर रही हो। इस तरह के कमेंट्स आपको आएंगे। ठीक है, आपने रिश्ते के लिए मना कर दिया, आपको रिश्ता आ रहा है, आपको फोर्स किया जा रहा है, आपने मना कर दिया, नहीं मेरे साथ भी हुआ, मुझे भी आया, मैंने कहा नहीं मैं अभी नहीं, मैं भी पढ़ना चाह रही हूँ, मेरे करियर ग्रोथ फिलहाल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने ये नहीं कहा मैं कभी करूंगी नहीं, मैंने कहा अम्मी फिलहाल मेरे लिए करियर ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, आप मुझे साइड जाने दे, ये चीज भी बाद में देखूंगी। ठीक है, इस तरह मैंने पोलाइटली कहा, इनको मना किया, लेकिन स्टिल कमेंट्स आते हैं कि सब कह रहे हैं कि बच्चियां को शादियां करवाओ, इस तरह के कमेंट्स आपको आएंगे। ठीक है, इस तरह के आपने कमेंट्स की, मैं कहती हूँ थोड़ी सी आदत डाल दें, आएंगे जब आप बाउंड्री सेट करेंगे। इमोशनली ब्लैकमेल आपको किया जाता है, जब आप बाउंड्री सेट करेंगे, किसी चीज के लिए मना करेंगे, इमोशनली ब्लैकमेल आपको किया जाएगा, लेकिन आपने नहीं गिरना, आपने इस चाल में नहीं गिरना। आपने सिंपल क्या है, देखिए जब आपको कोई इस तरह के कमेंट्स करें, जाहिर आप बाउंड्री सेट करेंगे, आपको कमेंट्स आएंगे, तो जब आपको कोई इस तरह के कमेंट्स करे तो आपने सिंपली स्टे काम, आपने कान नहीं रिएक्ट करने, आपने इमोशनल नहीं होना, आपने नहीं कहना अम्मी आप मुझे ऐसी बात क्यों कह रही हैं, मैं इतने काम करती तो हूँ, नहीं, आपने इमोशनली रिएक्ट नहीं करना। स्टे काम, अवॉइड आर्ग्यूइंग, शाउटिंग और जस्टिफाइंग योरसेल्फ टू मच। ठीक है, अवॉइड करते ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स करना, आपने कोशिश करनी यू हैव टू स्टे काम। ठीक है, इस तरह की आपकी बहुत आती हैं कि तुम अपने पापा को मना कर रही हो, तो इस तरह के आप कमेंट्स सुनेंगे, लेकिन आपने इन द रिस्पेक्टफुल मैनर आपने काम रहना है। ठीक है, और अपनी बाउंड्री को रिपीट करना है, बार बार आपने बताना है कि आप ये चीज नहीं कर सकती हो। ठीक है, बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी इज द की। जब देखें आपकी क्लास में, फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में मुझे पता लग गया यार ये लड़की अपने नोट शेयर नहीं करती, तो मैं एक दूसरी बार, मैं भी दूसरी बार जाऊँ, लेकिन मैं तीसरी बार उसके पास नहीं जाऊंगी नोट्स मांगने, क्योंकि मुझे उसकी बाउंड्रीज पता लग चुकी हैं, सामने वाले को पता लग चुका होता है कि ये बंदा ये चीज नहीं करेगा, तो वो क्या होता है, वो खुद ही आपके पास आने से जरा रेजिस्ट हो जाता है, खुद ही आपके पास आने से थोड़ा बचेगा। ठीक है, जब आप कंसिस्टेंसी दिखाएंगे ना, अब आप ये करेंगे, पहली बार में आपने ना कह दिया, दूसरी बार में आप हाँ कह रहे हैं, मीन आप खुद ही अपनी बाउंड्री नहीं सेट कर पा रही, तो सामने वाला आपकी बाउंड्री से क्या वैल्यू देगा। तो क्या है, जब कंसिस्टेंसी इज की,
आपने काम व्यक्त करना है, और इमोशनल व्यक्त नहीं करना, ठीक है। उन्हें नहीं शो करना कि आपको गिल्ट हो रहा है। आपको गिल्ट हो रहा है, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल इमोशन, होता है, मुझे भी हुआ है। जब मैंने भी बाउंड्री सेट करना शुरू हुई थी, मुझे भी हुआ था। लाइक सिंपल, मेरे घर में मेहमान आते थे रोज, एंड अम्मी मुझे रोज कहती थी चाय बना दो, मैं बना देती थी। लेकिन मेरा एक दिन, अगले दिन एग्जाम था, तो मैंने कहा अम्मी, मैंने बहुत क्लियरली और डायरेक्टली कहा, मैंने कहा अम्मी मेरा सुबह एग्जाम्स है, इस वजह से मैं आज चाय नहीं बना सकती। हाँ, आप कहें तो मैं कल के परसों बना दूंगी, लेकिन आज मैं नहीं बना सकती। अब ये देखिए, ये बात जब मैंने की ना, तो ये बहुत रिस्पेक्टफुल में जा रही थी कि मैं उनकी बात को मना नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ मैं आज नहीं कर सकती, इन फ्यूचर में ये चीज कर लूंगी अगर मेरे पास टाइम हुआ तो। ठीक है, इस तरह से हमने ना क्लियरली अपनी, अच्छे से अपनी बात को उन्हें बताना है। ठीक है, तो वैसे तो और भी डिस्कशन हो सकती थी, लेकिन टाइम खत्म हो चुका है। तो योर लाइफ फुल ऑफ, मैंने बहुत एक्सपीरियंसेस किए हैं, साइकोलॉजी के स्टूडेंट सब कुछ किया है। मिस बाउंड्री बिकॉज आई वाज फ्रॉम, कहने थे कमेंट तो अच्छा कमेंट है ना कि आपको कोई मिस बाउंड्रीज बोल रहा है। मैं तो फिलहाल आई एम लाइक डूइंग ट्रेनिंग ले रही हूँ अभी इस चीज की। मैं आपको अपने बारे में वो बताऊंगी डिटेल में। व्हाट आर सर्टेन वेज टू हैंडल गिल्ट व्हेन सेटिंग बाउंड्री। देखिए, जब आपको गिल्ट होने लगे ना, लाइक मुझे भी हो रहा था जब मैं मना कर रही थी अपने दोस्तों को, तो मुझे हो रहा था कि गिल्ट, यार मैं क्यों मना कर रही हूँ। तो बस अपने आप को ना बार बार रिमाइंड करवाना है, कि अपने आप को रिमाइंड करवाना है कि आप नहीं कर सकती वो चीज, आपके बस में होता, आप जनरली उसकी हेल्प करना चाह रही थी तो आप कर लेती, लेकिन आपकी ये चीज आपके बस में नहीं है, ये चीज आपको नेगेटिव वे में अफेक्ट करेगी, तो आप सिंपली अपने आप को चीजें रिमाइंड करवाएं। तो ये चीज जब आपको लगता है ना, हाँ ये मैं अपने लिए कर रही हूँ, अपने लिए अच्छा है, तो फिर कहीं ना कहीं वो गिल्ट कम होने लगता है। क्योंकि बाउंड्रीज हमें हमारे लिए, हमारी वेलबींग को प्रोटेक्ट करने के लिए, नॉट फॉर अदर्स, हमारी वेलबींग को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है आप चैट या कमेंट में लिखें, क्योंकि आवाज तो मुझे नहीं आ रही। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, मिनाहिल आप कमेंट में लिख सकती हैं। यस, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहली बार जब आप किसी चीज को, अब आपने क्या करना है, जब आपको पता है कोई ऐसी बात जिससे आप हर वक्त हाँ कहते हैं और उससे जैसे आपको बहुत इश्यूज आ रहे हैं, आपने वहां ना कहना शुरू कर दे, स्टार्ट कर दे, स्टार्ट लें तरीके से, मतलब पोलाइट वे में आप स्टार्ट लें। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज जब आप करने लगेंगे ना, जब एक चीज में बाउंड्री सेट करने लगेंगे ना, ऑटोमेटिकली दूसरी चीजों पे भी आप बाउंड्री सेट कर सकते हैं। करियर ऑप्शन आफ्टर ग्रेजुएशन, ये तो डिपेंड करता है आप किस चीज में ग्रेजुएटेड है। ओके, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन एंड करते हैं। आपके जो बाकी क्वेश्चन होंगे आप मुझे व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, तो मैं वहीं पे आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगी। अभी मैं बाहर हूँ, इंशाल्लाह रात में घर जाके आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगी। ऑब्वियसली आफ्टर साइकोलॉजी, जी ये भी मैं आपको डिस्कस करूंगी कि साइकोलॉजी के क्या करियर ऑप्शन है, क्योंकि मैं खुद इस तक ऑफिस में बैठी हुई हूँ, और मैंने सर से टाइम दिया था कि सर आप मुझे आज 1 आवर दे दें, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो प्रेजेंटेशन। तो ठीक है, हम सेशन ऐड करते हैं। All right. Thank you so much, Fiza, for your lovely time. And I think it was an honor to have you with us. And we're just going to end the session now. Whoever have any questions, they can ask in the WhatsApp group, and any feedback that you want to give, I'm going to turn on the chat on the WhatsApp group, and then we can continue over there. Thank you so much. Allah Hafiz. थैंक यू, अल्लाह हाफिज। नाइस सवाल, अल्लाह हाफिज एवरीवन।